as the fullness of time is maturing for the Son of God to come back. ये वो संदेश नहीं जो मैं देना चाहूँगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहे हैं मैं वो कहूँगा, जब परमेश्वर के पुत्र के वापस आने का समय निकट आ रहा है. The Bible says in Galatians 4, when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were born under the law. गलातियों 4 में बाइबल कहती है, जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक कुंवारी से जन्मा, व्यवस्था के अधीन जन्मा, उन लोगों को आजाद करने के लिए जो व्यवस्था के अधीन थे. In the same way, times are maturing on this earth. ठीक वैसे ही इस पृथ्वी पर भी जो समय है वो पूरे हो रहे हैं. Time, we are getting closer and closer to that time where Jesus will establish His kingdom on this earth. हम उस समय के और ज़्यादा निकट आ रहे हैं जहां यीशु अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे. Amen. आमीन. But before that, लेकिन उससे पहले sons of God has to manifest on this earth. परमेश्वर के पुत्रों को इस पृथ्वी पर प्रकट होना होगा. Amen. Not children of God, sons of God. परमेश्वर के बच्चों को नहीं, परमेश्वर के बेटों को. The mature sons of God. वो सयाने परिपक्व पुत्र. And even I don't know what God said. I don't have the full knowledge of what God means, but He said the way we know church services are going to change. और मुझे भी नहीं पता परमेश्वर ने जो कहा उसका क्या अर्थ है, लेकिन उसने ये कहा कि जैसा हम जानते हैं कलीसिया की सभा होती है वो बदल जाएगा. People are going to be caught up. लोग उठा लिए जाएंगे. Amen. आमीन. Wow. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. So are you ready for another 3-hour message? क्या आप तैयार हैं अगले 3 घंटे के संदेश के लिए? So I had not decided that I'm going to teach this. मैंने ये सिखाऊंगा करके निर्णय नहीं लिया था. But just this morning when I got up, लेकिन आज सुबह जब मैं उठा, Holy Spirit just put in my heart, and I was just, whenever I get up in the morning, sometimes I lift my hand and I don't think what I'll say. And again I began to declare this, that the devil is defeated. And I just felt like that we have to do a series on spiritual warfare. और जब मैं सुबह उठा तो मैं ऐसा सोचता नहीं कि आज मैं क्या कहूँगा, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने अपने हाथों को उठाया और पवित्र आत्मा से बार बार मैं इस बात को कहने लगा कि शैतान हराया जा चुका है, शैतान हराया जा चुका है. और मैंने महसूस किया कि आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर हमें शिक्षा करनी चाहिए, सीरीज करनी चाहिए. Amen. आमीन. I believe it will be a very, very important series that you will hear. मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी जिसको आप सुनेंगे. Because even though there are many teachings on spiritual warfare, क्योंकि हालांकि आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं हैं पहले से. some are excellent, कुछ बहुत अच्छी हैं, but some are very bad. पर कुछ बहुत ही खराब हैं. And it's very sad that so many Christians have gone into bondage because they heard too much teaching on spiritual warfare. और ये बड़े ही दुख की बात है कि बहुत से मसीह लोग बंधन में चले गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं सुन ली आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर. It breaks my heart मेरा दिल इस बात से खेदित होता है that when new believers are taught about demons and devil more than they are taught about who they are in Christ Jesus. जब नए विश्वासियों को ये सिखाया जाता है कि शैतान कौन है और दुष्ट आत्माएं कौन है, ये सिखाने की जगह कि वो कौन है मसीह में नया जन्म पाकर. And then what happens? फिर क्या होता है? These new believers ये नए विश्वासी are taken into captivity. बंदी बन जाते हैं. All they see is demons. उनको हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई All देती they हैं. hear is demons. उनको सिर्फ दुष्ट आत्मा की आवाजें आती हैं. Their dreams are filled with demons. उनके सपनों में दुष्ट आत्माएं भरी होती हैं.
we have robbed these children of God from their great inheritance by teaching them and overemphasizing Satan and his demons. हमने परमेश्वर के इन बच्चों से अवसर चुरा लिया है, उनको उनकी विरासत ना सिखाकर ज्यादा अहमियत शैतान और दुष्ट आत्मा पर देकर. And I have personally found it's very hard to convince such believers because they are so convinced about demons, about curses. और मैंने ये पाया है कि ऐसे विश्वासियों को फिर समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि वो कौन है, क्योंकि वो पूरी तरह से राजी हैं कि शैतान कौन है और दुष्ट आत्माएं कौन है, श्राप क्या है. If all the times you are seeing demons, अगर सारा समय आपको दुष्ट आत्माएं ही दिखती हैं, don't blame the demons, blame your eyes. तो दुष्ट आत्माओं को मत कोसो, अपनी आंखों को जांचो. Because there are many angels as well in the spirit realm. My question to you is, why do you only see darkness? क्योंकि आत्मिक दुनिया में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, तो मेरा ये सवाल है कि आपको अंधकार ही क्यों नजर आता है. Amen. And it is because of overemphasizing. There are many teachings which has made Satan glorious and majestic. और वो इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है, या बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है शैतान के बारे में सिखाने में, और शैतान को इतनी महिमा दी गई उन शिक्षाओं में. I remember I have been with such a team. मुझे याद है मैं ऐसी एक टीम के साथ था. And they had a long book in their hand which had all the name of all the demons. और उनके हाथ में एक बड़ी मोटी सी किताब थी, उसमें सारी दुष्ट आत्माओं के अलग अलग दुष्ट आत्माओं के नाम थे. 400-500 names of demons. 400-500 नाम थे उसमें. Demons that makes people smoke cigarette. That demon's name. वो दुष्ट आत्मा जो लोगों को सिगरेट पिलवाती है, उसका Demons भी नाम that come to people in the middle of night and gives them nightmare. That demon's name. जो दुष्ट आत्मा आधी रात को आके भयानक सपने देती है, उसका नाम था. You don't walk in victory आप जय में इसलिए नहीं जीते because you know and you have studied who Satan and his demons are. क्योंकि आपने बड़ी पढ़ाई करी कि शैतान कौन है, उसकी दुष्ट आत्माएं कौन कौन है. You walk in victory when you know who you are in Christ Jesus. आप जय में तब जीते हैं जब आपको पता होता है कि आप मसीह यीशु में कौन है.